हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा चेकलिस्ट फॉर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट सेकंड है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 चेकलिस्ट फॉर अवेलिंग जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ सिनेरियो होते हैं। उन सिनेरियो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कितने सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, उस केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। ओके सबसे पहले व्हेन यू लीव द कंपोजिशन स्कीम एंड बिकम अ रेगुलर डीलर। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ओके देन इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम एंड योर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस द 50 lakh rupees, you have to move away from the composition scheme and become a regular dealer. When you leave the composition scheme and become a regular dealer, you can avail input tax credit on input. Input contained in semi-finished or finished goods in stock and capital goods on the day before the date on which you become liable to pay tax. The credit on capital goods will be reduced by percentage points which will be notified. For example, you have been registered as a composition dealer under GST and your turnover has now crossed the rupee 50 lakh. Hence you leave the composition scheme and become a regular dealer. Your turnover has crossed rupee 50 lakh on 10th October 2017. Then within 30 days में आपको फिर registration करवाना होगा. And your stock on 9 October 2017 contain the following inputs: raw material 1 lakh, सेमी फिनिश को 50 लाख 1 लाख 50। तो इन पर टोटल कितना हमने टैक्स पे कर चुके हैं 54,000। देन हम रजिस्टर हो जाएंगे, देन यू कैन अवेल द फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 54,000 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय द नोटिफाइड परसेंटेज पॉइंट्स। एक ये इमेज सिनेरियो रहेगा। दूसरा रहेगा कि व्हेन एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज बिकम टैक्सेबल, मतलब जब हमने मैन्युफैक्चर किया था उस वक्त तो एग्जेम्प्ट था, बट बाद में उसे टैक्सेबल डिक्लेयर कर दिया है। तब अगर टैक्सेबल डिक्लेयर कर दिया है तो जो हमने जो परचेज किया उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा जब आप सेल करेंगे। व्हेन गुड्स और सर्विसेज डिक्लेयर एग्जेम्प्ट from GST are made taxable, you can avail input tax credit on the following on the day before the supply become taxable. Input in stock and input contained in semi-finished or finished goods in stock which are retainable to the exempt supply. Capital goods exclusively used for the exempt supply, then credit on capital goods will be reduced by percentage point which will be notified. क्योंकि वो exempted purpose में use हुआ है तो फिर कोई matter नहीं है। You manufacture an exempt goods. This exempt goods is taxable 5th December 2017. You have the following input used to manufacture the exempt goods in stock 4th December 2017. तो input है raw material A, B 3,30,000, total हमने GST पे किया है 59,400. Then you can avail the full input tax credit 59,400 on the input used to manufacture the exempt goods which has been made taxable. You can also avail input tax credit on capital goods exclusively used for the exempt supply. हमें capital goods का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो कि एक्सक्लूसिव यूज फॉर द एग्जाम सप्लाई। क्यों? क्योंकि बाद में तो वो टैक्सेबल हो ही गया जिस पर्पज से हमने कैपिटल गुड्स यूज हुआ था। रिड्यूस बाय परसेंटेज पॉइंट विच विल बी नोटिफाइड। नेक्स्ट सिनेरियो व्हेन सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस अकर, उस केस में हम क्या करेंगे? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसे हमने सेल किया है उसे हमारा जितना भी बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का रखा है वो भी उसको, जैसे हमारी एसेट से लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इन एनी ऑफ दिस केस इफ देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, the unutilized input tax credit can be transferred to the sold, merged, demerger, amalgamated, leased or transfer business. For example, Mohan Electrical Private Limited sold its business to Ram Electrical Private Limited. मोहन ने राम को सेल कर दिया। At that time of sale, Mohan Electrical Private Limited unutilized input tax credit 2,50,000. In the sale agreement, it was agreed that all liability and asset of Mohan Electrical Private Limited will be transferred to Ram Electrical Private Limited को सेल हो जाएगा। In this case, Mohan Electrical Private Limited can transfer the unutilized input tax credit of rupees 2,50,000 to Ram Electrical Private Limited को सेल कर देंगे।
जो भी असेट्स लायबिलिटी के साथ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट ए बिग इशू। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स और सेल आर यूज पार्शियली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्शियली फॉर अदर पर्पस, तो लॉजिकली है, जो बिजनेस पर्पस में यूज हुआ है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और जो अदरवाइज यूज हुआ है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। When goods or services are used partially for business purpose and partially for other than business purpose, input tax credit can be availed only on the portion used for the purpose of business. For example, you are an electronic goods dealer and you purchase computer of rupees 3 lakh from a manufacturer on which GST rupees 54,000 has been paid. Out of this computer purchase, कंप्यूटर वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर टेकन अप बाय योर पर्सनल यूज में आपने ले लिया, बाकी रिमेनिंग बचा 2 लाख, वो आपने बिजनेस पर्पज से यूज किया है, तो 2 लाख जितना आपने बिजनेस पर्पज से यूज किया है तो उसका 18% 36,000 का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट सिनेरियो सेम, when goods or services used for partially for taxable supply and partially for exempted supply, तो exempted supply पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और बिजनेस पर्पज से जो यूज हुआ है उस पर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ए मैन्युफैक्चरर, you purchased raw material of rupees 1 lakh on which GST paid 18,000. The raw material have been paid partially for manufacturing of item A and B is exempt product. ठीक है, तो A है 60,000, B है 40,000 जो कि एग्जेम्प्टेड है, तो GST पे टोटल मैंने किया 18,000, तो 18,000 में से ये इसका पोर्शन तो हटा देंगे एग्जेम्प्ट का और जो टैक्सेबल पोर्शन का 10,800 पर हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। देन एक्सेप्शनल सिनेरियो, व्हेन गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, उस केस में हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल, यू आर ए मोबाइल फोन डीलर, ऑन 1 अगस्त 2017 यू परचेज 50 मोबाइल फोन फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर से आपने डील कर लिया कि मुझे आपसे 50 मोबाइल परचेज करने, और किस तरीके से परचेज करने हैं, इट्स एग्री दैट द मोबाइल फोन विल बी सेंड बाय द मैन्युफैक्चरर इन 2 लॉट्स ऑफ 25 मोबाइल फोन्स ईच, ठीक है, ऑन 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ्स। तो क्वार्टरली इस तरीके से आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है आपका 50-50, टोटल 100 मोबाइल्स आ गए, ठीक है, टोटल आपने 5 लाख मोबाइल परचेज कर लिया, विद इन अ स्टेट हुआ है तो CGST SGST चार्ज हो जाएगा, तो टोटल 45,000 90,000 का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 90,000 ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो लास्ट में आपको जितना लॉट मिल गया कंप्लीट, वो आपसे पूछेंगे जितना आपको लेना था आपका कंप्लीट हो गया, देन अब उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन होगा। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन पाइपलाइन एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर, तो द फाइनल ईयर इन विच द पाइपलाइन एंड द टेलीकम्युनिकेशन टावर इज रिसीव, तो 1/3 ऑफ द टोटल इनपुट्स पेड, इतना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मैक्सिमम की बात हो रही है, एंड द सक्सेसिंग ईयर 2/3 एंड सब्सिक्वेंटली ईयर बैलेंस इनपुट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC Telecom Private Limited purchased a telecommunication tower in April 2017 on which GST paid 30 lakh. They can avail input tax credit on the tower in the following manner. तो 17, 18, 19 मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर का 1/3, देन 2/3 इंक्लूडिंग द क्रेडिट अवेल 20 लाख, जिसमें से 10 लाख पहले का, 10 लाख अभी का, बैलेंस का 10 लाख। तो इन दिस आर्टिकल we learn of the scenario in which input tax credit can be availed in the condition, okay, तो हमने समझा कि किस तरीके से कैसे ये काम करता है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड कीप इन टच, इसी तरीके से हम आपके लिए और टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।